Welcome to the Smiling Soul Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors, and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. हमारी आज की खास मेहमान हैं श्रीमती भारती गुर्जर। उनको खास बनाता है उनका जीने का जज्बा, क्योंकि वो मानती है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो हमेशा कुछ नया सीखने का बेड़ा उठाती है, फिर चाहे वो टैरो रीडिंग हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो या फिर मोडी जैसी प्राकृत स्क्रिप्ट हो। तो समझते हैं और करीब से भारती जी का फंडा लिव, love, learn and laugh. So welcome Bharti ji. Thank you. Thank you, the Smiling Souls, the senior podcast platform. I'm very happy to be with you and share some of my life with you all seniors. Thank you for having me here. आपने जिंदगी की बात ही की है. So let's begin with your childhood. Tell us something about your childhood. Well, as a child, I remember my parents raising me up in a particular disciplined fashion. Okay. वो हमेशा कहते थे कि आपको इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने हैं और जो भी डिसीजंस आप लोगे उस पे आपको रुका रहना है. You should not be, on two stones. You should not have your leg on two stones. तो जो भी आप एक्शन लो, जो भी आप डिसीजन लो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने की क्षमता रखनी चाहिए. Right. चाहे वो भला करेक्ट हो या रॉन्ग हो, जो भी हो, आपको उसके साथ ही चलना है. And that made me totally independent. It made me take decisions on my own at a very early age. And of course, he taught me time management because my father was very particular about time. वो हमेशा कहते थे, अगर कहीं पे आपने किसी को टाइम दिया है तो एटलीस्ट 10 मिनट पहले पहुंचो. इससे दो चीजें होती है. एक तो आप वक्त के पहले पहुंच जाते हो, विच इज वेरी करेक्ट. एंड सेकेंडली, ऑफकोर्स ऑन अ लाइटर नोट, अगर आप थोड़ा सा जल्दी पहुंचे और वहां पे अंदर कुछ कुसुर कुसुर हो रही है तो आपके बारे में वो भला कह रहा है या बुरा कह रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा. बट दिस इज ऑफकोर्स ऑन अ वेरी लाइटर नोट. सो टाइम मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट बिहेवियर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस were the three things that they gave me as a child. I think मुझे वो आपकी और एक बात अच्छी लगी, which is staying true to your decision and owning up for that decision. उससे ये Yes. चीज़ बहुत होती है कि जो हमें दूसरों को ब्लेम करने की आदत होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं होती, बिकॉज आई एम ओनिंग अप फॉर व्हाट आई एम डूइंग. Yes, you take the onus on yourself. Yes, so that's the great thing that I see. Yes. My father was also a self-made man. He did everything on his own merit. जैसे कि वो पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए यूके गए थे, तो वो भी अपने खुद के बलबूते पे गए थे, ना किसी की हेल्प की थी, उन्होंने ली थी या उनको किसी ने हेल्प की थी. And that is what he said, that how I have made myself self-supportive, आपको भी वैसे ही बनना है. Super. That was a great seek as far as my childhood goes. एब्सोल्युटली, क्योंकि उस जमाने में लड़कियों को इस तरह की ग्राउंडिंग देना, इस तरह की हिम्मत देना, कॉन्फिडेंस देना रेयर होगा. मतलब हर घर में ये माहौल शायद नहीं होगा. सो एक्सेलेंट, दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट योर पेरेंट्स गेव यू. सो हम ये जानते हैं कि आपके घर में थोड़ा बहुत पॉलिटिकल माहौल था. वो क्यों था, कैसा था, क्या कौन कौन लोग आते थे, उस पे थोड़ी सी बात करिए. Yes, my god grandfather who adopted my father was into politics. मतलब not exactly into politics, but he was always with the in the political group. तो वो उन्होंने काम नेहरू जी के साथ, गांधी जी के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बड़े बड़े काम किया था. और उनकी वजह से I had the privilege of meeting quite some renowned political leaders. For example, I met Dr. Rajendra Prasad, though I was just 1 year old then, but I did meet him, or rather he saw me.
I don't remember anything about that. Then I met Vasant Rao Naik ji, who was the chief minister. I met Madhukar Rao Chaudhary, the educational minister. I met Acharya Vinoba Bhave ji. He, I think, visited our house. Kaka Kalelkar ji, I used to go to their house regularly. Nice. Bala Saheb Thackeray was one of the celebrities where I used to regularly go because मेरे grandfather जहाँ भी चलते थे, मैं तो वैसे ही फ्री थी, तो बोले चलते हो क्या? तो घूमने जाने के लिए कब ना होती है, तो Right. मैं चलती थी उनके साथ हमेशा। तो ऐसे सब सेनापति बापट जी हमारे घर पे आके गए थे, ये भी मुझे धुंधला सा याद है। तो इन Excellent. लोगों के साथ रहने का मौका मिला था, दो आई वाज टू स्मॉल, बट आई रिमेम्बर दीज पीपल। Very nice. आपके बचपन की कोई ऐसी खास याद जो अभी भी आपके दिल के बहुत करीब है? यस, एक चीज है जो मेरे बहुत दिल के करीब है। उसके लिए मैं या तो नेगेटिव बोल सकते हो या पॉजिटिव ले सकते हो आप, दोनों चीजें उसमें शामिल है। एज अ चाइल्ड मुझे हमेशा स्टडीज का फियर होता था। जब एग्जाम्स आती थी तो मुझे तेज बुखार चढ़ता था, जस्ट वन डे बिफोर द एग्जाम, एंड आई वुड हैव लूज मोशंस एंड आई वाज नॉट एबल टू गो फॉर माय क्लास एग्जाम्स। आइदर दैट वुड बी द केस, और जबरदस्ती मेरे को भेज भी दें, then I would always fail. I would get either a 0 or a 1 or a 2 or a 3. That was the max marks that I would get. So ये सिलसिला काफी देर चलता रहा, और इसका रीजन भी I can tell you. The thing is, my father had gone to UK, as I told you, on his merit for further studies, and my mother, though she was a homeopath doctor, she had to attend to her ailing mother. So she would be off and on out at her parents' place more often. तो पढ़ाई के लिए कोई जिम्मा था नहीं, मतलब आई वुडंट बी एबल टू डू स्टडी कोप विद द स्टडीज। तो ये हाल था। देन यू हुआ कि व्हेन माय फादर रिटर्न्ड फ्रॉम यूके समवेयर इन 1969, he saw my progress book and he saw most of the things I was either failed or absent. तो उसने ये क्या है भारती? मैंने कहा, well, this is what I can't understand. I'm unable to study this. So he says, okay, I'll do something for this. And then he being, in Marathi हम कहते हैं कि हाडाचा master. Like he's the person who can take anybody for a class and give you the maximum studies. So उन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश की, rather सिखाया, and from then onwards, there was no looking back. I always scored 100 on 100 and I was always topping the class. So this was the turning point of my life after he came back. तब तक मुझे बहुत डर लगता था, and मेरा learning actually उसके बाद चालू हुआ, and then there was no looking back. And believe me, my learning actually started after that, after my 7th standard. This was the हकीकत जो मैं बता रही हूँ, वो 7th standard की बात कर रही हूँ। और उसके बाद, as I said, I was always on the top, 100 on 100 in most of the subjects. So this is an awesome story and it's an incredible inspiration for everyone. उसके बाद क्या हुआ? What happened? I mean, what we know is that you got married early. So उसके बारे Yes, में I कुछ got बताइए. married. I got married at the age of 16. I was 16 complete when I got married. And that's how I was in my inter science when I got married. मतलब अभी So की immediately 12th. अभी की 13th. Okay. So at 16 I was in my inter science. Then I got married. Marriage के बाद तो मन नहीं किया करने का, थोड़ा I said I'll take a break. और 17th को I had my first child. My daughter was born when I completed my 17 years. और फिर उसकी परवरिश में एक आध 2 साल यहीं पे निकल गए। देन एक दिन मैंने अपने आप पे सोचा कि भाई मेरे ससुराल के सभी लोग ग्रेजुएट्स है, डबल ग्रेजुएट्स है, और मैं अकेली ही हूँ जो इंटर साइंस भी नहीं पूरा किया है। सो आई आस्क्ड माय हस्बैंड वेदर आई कैन रीजॉइन कॉलेज। तो बोले बिल्कुल, यू हैव टू स्टडी, यू कांट सिट लाइक दिस विदाउट स्टडीइंग। तो देन आई रीजॉइन माय कॉलेज, एंड अगेन कॉलेज में एक्सेप्टेंस का बहुत प्रॉब्लम होने लगा बिकॉज आई वाज अ मैरिड वुमन विथ वन डॉटर। सभी को ये बात तो फैल गई कि आई वाज मैरिड एंड आई हैड अ डॉटर। तो एवरीबडी वाज नॉट क्लोज, नहीं आते थे, थोड़ा सा दूर से रहते थे, बट लेटर ऑन वी मैनेज टू जेल विथ ईच अदर एंड देन इट वाज अ वंडरफुल बॉन्डिंग। So this was my college and my शादी की story.
उसके बाद मुझे है ना ऐसे लगा कि मैंने कुछ हटके करना चाहिए। ग्रेजुएट तो हर कोई हो जाता है, राइट। तो ऐसे हटके क्या करूं। अब फिर दिमाग में आया कि उस वक्त अपने पास बड़े बड़े टीवीज हुआ करते थे जिसमें वाल्व और ह्यूज टीवीज विथ वाल्व्स इनसाइड। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ये सीखूं, इसका सर्विसिंग कैसे करते हैं। तो वो 2 साल का कोर्स था, वो मैंने कर लिया। आई टॉप्ड इन दैट एज वेल। और जब मैंने कंप्लीट किया तो ऑर्डर्स के लिए मैं घर पे जाने लगी लोगों के। तो एक घर पे ऐसे ही हुआ कि मैं गई थी उनके पास, बेल लग मारी, उन्होंने दरवाजा खोला तो बोले आपका टीवी खराब है। बोले हाँ। मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक आ जाएगा। मैंने कहा मैं आ गई हूँ। तो आप आ गए हो तो आप क्या करोगे। मैंने कहा मैं टीवी सर्विसिंग कर दूंगी। बोले आप, और टीवी सर्विसिंग। मैंने कहा हाँ, मुझे करने का मौका तो दो। फिर उन्होंने मुझे करने का मौका दिया और मैंने जब किया तो मेरे को अच्छे से चाय नाश्ता सब पिला के, फीस दे के ऑफ कोर्स रवाना किया। सो दैट वाज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू डू डिफरेंट, व्हिच अ गर्ल और अ लेडी वुडंट ट्राई टू डू। एंड बिलीव मी, आई वाज द ओनली गर्ल, ओनली लेडी इन माय क्लास। वाओ, दैट्स क्वाइट अमेजिंग। सो आपने फिर वो जारी नहीं रखा? नहीं, उसके बाद तो आईसी वाले टीवी आ गए, फिर क्या है, आईसी बदलो और ये करो, उसमें कोई मजा नहीं रहा। आपका बैंकिंग करियर वो कहाँ से शुरू हुआ? वो भी एक बहुत अजीब किस्सा है। ऐसे हुआ कि मैं तो काम करना नहीं चाहती थी। मैंने हस्बैंड भी बोले कि आपको क्यों काम करने की जरूरत है, आप बच्चे को संभालो, घर संभालो। मैं भी ऑलवेज खुश थी उसमें। लेकिन एक दिन मेरा भाई आया, मेरा छोटा भाई है। तो ही के दीदी दीदी एक ये फॉर्म है आप भर दो। मैंने कहा काय का फॉर्म है। बोले ये तो बैंकिंग की एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बैंकिंग के एप्लीकेशन के लिए फॉर्म है। मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो बोले नहीं फिर भी मैं कहता हूँ आप भर दो। तो जिद जिद करके बैठा ही सामने, बोले नहीं आपको भरना ही भरना है। तो उसकी वजह से मैंने वो फॉर्म भरा। वो खुद जाके वो डीडी डालना था, 20 रुपए का या 10 रुपए का डीडी बनाना था, वो भी उसने बनवा लिया और जाके वो ड्रॉप करके आ गए। फिर आई गॉट अ कॉल फॉर माई एग्जाम्स। तो वो भी मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो खुद मुझे लेके गए सेंटर पे, बोले नहीं आप जाओगे, आप एग्जाम दोगे। वो एग्जाम दी एंड आई क्रैक्ड द एग्जाम एंड आई वाज सिलेक्टेड इन द बैंकिंग करियर। उसकी वजह से मैं बैंक में गई और आज उसका मैं फायदा भी देख रही हूँ कि आज मुझे पेंशन मिल रही है। एंड दैट वाज माय ब्यूटीफुल करियर ऑफ माय लाइफ व्हिच आई स्पेंट 37 years in the bank and वाह, I enjoyed. So all अमेजिंग, the credit goes to my brother who literally forced me. अमेजिंग, अमेजिंग। सो हम ये भी जानते हैं कि आपकी एजुकेशन वहाँ तक नहीं रुकी, ग्रेजुएशन तक नहीं रुकी। एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड योर एमबीए? व्हाट इज योर इंस्पिरेशन? बैंकिंग, एमबीए, एंड सडनली इन बिटवीन, what age did you do? Well, I did my management at the age of 40, around 40, when Wow. my daughter was into doing her management. तो मैंने कहा चलो मैं भी सीख लेती हूँ, उसके साथ साथ मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी। सीखने का तो शौक था ही, जो मिले वो सीखना चाहती थी। और उसके दौरान मैंने बीच में टैरो का बिगनर्स क्लास किया था, हैंड राइटिंग एनालिसिस की थी, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था। My goodness. तो ये सब बीच में कर रही थी। एंड देन सडनली मैंने डॉटर सेड शी वांटेड टू डू हर मैनेजमेंट, आई सेड चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो आई टुक एडमिशन, दो आई गॉट इट एट दैट एज एंड एट दैट टाइम। तो आई डिड माय ग्रेजुएशन, आई सॉरी, आई डिड माय मैनेजमेंट एट द एज ऑफ 40। और उसमें भी एक बहुत मजे का किस्सा हुआ। तो ये हुआ कि उसके रिजल्ट्स जब आए ना, एक दिन मुझे घर पे लेटर आया कि you have topped the class and you have to come and collect the Dr. B.K. Basu prize from the university because of scoring maximum marks in the semester. So I went to the university and I filled up the form and all. So that person said, भाई आपकी डॉटर कहाँ है? मैंने कहा क्यों? बोले शी इज भारती गुर्जर राइट, उसको प्राइज देना है। मैंने कहा नहीं, भारती गुर्जर तो मैं हूँ। तो ही वॉज इन द ऑल एक्यून, ऐसे देख रहा था मेरी तरफ अचरज में कि, बोले क्यों क्या हुआ? बोले नहीं, दिस इज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ माय लाइफ एज लॉन्ग एज आई वाज इन दिस यूनिवर्सिटी कि कोई शादीशुदा औरत एट एज ऑफ 40 डूइंग हर मैनेजमेंट एंड दैट टू टॉपिंग द क्लास सेमेस्टर्स एंड कलेक्टिंग दिस प्राइज। दैट्स व्हाई मैंने आपको पूछा कि आपकी लड़की कहाँ है। तो दिस वाज एक मजे का किस्सा हुआ था एंड आई रियली एंजॉयड दैट।
getting that kind of recognition and the prize. I was too happy. The college also, the from the college which I did, even they gave me a special prize for that. After that, I did some more studies. Jaise ki I learned Modi Lipi. Now, this Modi Lipi, let me tell you, is a script. It is not a language. It's a script which they would be writing in the Maratha Empire time when Shivaji was the ruler. Empire, his Maratha kingdom was there. This was the script in which they would write letters. And I believe Britishers also have a knowing of this letter, the script. They know the script. So there are so many dastavej bolte hain usko, like papers which are still in this script, which people need to understand and read it out. So I thought of learning this and help people who need my help. So I taught that as well. Then I completed my advanced tarot. Just recently, I completed my numerology classes, completed detailed numerology. Now I'm doing my mobile numerology and just trying to help people, because this helps. Numerology helps you to connect with the divine, get the energies, and synchronize with that. So that will definitely help people, and that's the intention that I learned this with. कोई एक दो टिप जो इनमें से कोई भी कोर्सेज की जो जितने जितने आपने किए हैं, चाहे वो हैंड राइटिंग हो, सो मे बी यू कैन स्पीक वन और टू थिंग्स अबाउट हैंड राइटिंग और अबाउट सिग्नेचर और अबाउट टैरो, अबाउट सिग्नेचर के लिए आई कैन जस्ट गिव यू अ स्मॉल टिप. लाइक नॉर्मली कैसे होता है कि कोई कोई इलेजिबल सिग्नेचर करते हैं, ट्राइंग टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड. राइट. You should not have a signature like that. It should be legible. And one thing, the flow should be on the top. ऐसे मतलब साइन ऐसे ऊपर जानी चाहिए. राइट. ओके. Because they say that is the rise of your life. अगर आप नीचे के तरफ करोगे तो then you are not rising up. You are going towards the downtrend चालू हो जाता है. So these are some simple things. Legible होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए. You can have a line after that, 2 dots also, that doesn't matter. But we can always analyze the handwriting and help people doing changing the signatures or even the writing styles. ओके. नाइस. समथिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, कुछ एक आध दो टिप. Well, as I said, there are many mobile numbers now. आपका हर business is on mobiles nowadays. But not all the numbers are suitable to your date of birth. So we have to look into your date of birth, the numbers which are friendly, which are anti, which are neutral, and then accordingly we can suggest you a mobile number to be purchased. Or if it is matching, there is no problem. If your existing mobile number is matching to your date of birth and it's okay, we can go ahead with that. Otherwise, we suggest to change the mobile number, since it's one of the अहम पार्ट बोलते हैं ना, the main thing हो गया आपके बिजनेस में. एक जरूरत मोबाइल इतना ज्यादा यूज होता है बिजनेस में, इसलिए और पूरा बिजनेस उसी में चलता है. ट्रू ट्रू. तो इसलिए कहना है कि भाई अगर मोबाइल आपका सही हो तो आपका बिजनेस भी फ्लरिश हो जाए. वेरी नाइस. सो कमिंग बैक टू योर एजुकेशन और योर पेंशन फॉर लर्निंग, सो ये इस सारी पढ़ाई के लिए हु वाज योर रियल इंस्पिरेशन, कहाँ से आया ये? वेल, एक तो मुझे लर्निंग का बहुत शौक था, बिकॉज उसके बाद एज आई सेड फेलियर के बाद जब लर्निंग चालू हुआ तो आई हैड दैट क्रेविंग फॉर लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखूं. बट my father-in-law was a very motivating person or an inspirational person in my life, because उन्होंने अपने grandson के साथ SSC complete की. Oh my God. घर में किसी को पता नहीं था. हाँ, I mean, अचरज की बात यह है कि घर में किसी को पता नहीं था. He would go quietly somewhere, 2-3 घंटे नहीं आते थे घर पे. हम लोगों को लगा काम से जाते होंगे. So he would go to the library, study, and he went for the exams. तो एग्जाम के वहां पे गए तो सबको लगा ही वाज आई थिंक 60 अराउंड होंगे. तो बच्चों के साथ ये भी गए तो जो वहां पे मॉडरेटर इंडिविजुअल थे उन्होंने पूछा, भाई आप कौन से क्लास पे सुपरविजन करने आए हो? तो बोले मैं सुपरविजन के लिए नहीं आया हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं एग्जाम देने आया हूँ. तो वो बच्चों के साथ बैठ के उन्होंने एग्जाम दी. और हम लोगों को घर पे कब पता चला कि जबकि रिजल्ट्स आए और एक अखबार था बेलगाम में, ही वुड स्टे, तो वहां का जो अखबार था उसमें मेन ऐसे मतलब इन फ्रंट पेज में एक न्यूज आइटम करके आई
a 60-year-old person completed his SSC with so and so marks and credit. Everybody prashansa, like, everybody was in the awe of it. या इंडीड इट इज ऐसे कहीं हम देखते नहीं है कि इस उम्र में जाकर कोई अपनी स्कूलिंग खत्म करता है. उनको ये था कि he could not complete his studies when he was young. उनके घर का जिम्मा आ गया था, so he had to stop studies and take care of his family. तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि he wanted to study. तो उन्होंने अपने ग्रैंडसन के साथ, मतलब वो बैठते थे उसके साथ, क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, ऐसे कर करके फिर उसके साथ भी पढ़ते थे और लाइब्रेरी में जाके भी पढ़ते थे. एंड दैट्स हाउ ही कंप्लीटेड स्टडीज. एंड हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन कि उनकी तरफ से मैं बहुत मोटिवेटेड हो गई थी फॉर माय एमबीए स्पेशली. इस मौके पे मैं और उनके लिए एक और बात कहना चाहती थी उनके बारे में. उन्होंने एक जिद की मेरे से. टाटा ने नैनो लॉन्च की, तो मुझे बोलने लगे मुझे वो गाड़ी खरीदनी है. तो मैंने वो फॉर्म वॉर्म भर के उनको गाड़ी दिलवा दी. एट द एज ऑफ 94 गए सीखने, बोले मुझे कार सीखनी है. तो वो जो सिखाने वाले लर्निंग जो स्कूल्स होते हैं, दे सेड एट दिस एज वी कांट गिव यू इवन द लर्निंग लाइसेंस. तो बोले क्यों, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मुझे सीखना है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है. But somehow they refused, and we also had to convince him that at this age the reflexes are not proper. We cannot ask you let you go with the car. But he still learnt it from his children. और थोड़ी सी ड्राइविंग तो करते थे. I'm proud of myself. I'm proud of my family. I'm proud of my father-in-law and everybody. आप स्माइलिंग सोल्स के साथ पिछले लगभग 4 साल से जुड़ी हैं. जी. ये सफर आपका कैसा रहा? ये बहुत ही खूबसूरत सफर रहा, क्योंकि मुझे जैसे याद है स्माइलिंग सोल्स पहले पहले दिनों में हफ्ते में एक बार या मुश्किल से 2 बार मिलता था. और हम राह देखते बैठते थे बिकॉज दैट वाज कोविड टाइम्स एंड वी हैड नॉट मच टू मूव आउट. तो राह देखते बैठे थे कि कब इसका एपिसोड होगा, कब हम मिलेंगे, कब साथ में रहेंगे, कब गाने गाएंगे, कब डांस करेंगे, जो भी करते थे. और आज 4 साल के बाद स्माइलिंग सोल्स ने इतना एडवांस किया है कि जैसे एक बच्चे से ना एक बड़ा हो गया है, यंग बच्चा हो गया, यंग लड़का हो गया है, ऐसे हुआ है. आज उनके दिन में 2-2 3-3 एपिसोड्स होते हैं. तो कहाँ हफ्ते में 2 एपिसोड और कहाँ रोज के 2 एपिसोड. So this has been a wonderful journey and I've enjoyed every moment of the Smiling Souls because I actually used to participate in the singing, in the dancing, in anchoring, in जो बोलो. उनके क्रिसमस पार्टी थी तो मैं क्रिसमस सैंटा क्लॉज बन के आई थी. जो कंपेयरिंग करना था तो वो अलग हिस्से अलग स्टाइल में आई थी. तो I loved doing it and I enjoyed every moment of it. And I wish you all the best कि आप इससे भी आगे चलो and you do lot for the seniors to keep them happy and to keep them engaged. सो आप जो All the best. एंकरिंग करती है, आप जो सेशंस लेती है कभी कभार, आप एंजॉय करती है वो? बिल्कुल एंजॉय करती हूँ, इसीलिए तो मैं नए नए आइडियाज लेके आती हूँ कि भाई इस पे एक एपिसोड करें, इस पे एक एपिसोड करें. तो I keep on doing something for the smiling souls and for the people. यू मीन सेशंस? Sessions, yes. What is your life mantra? Well, my life mantra is एक कह दूं तो सीखने के लिए there is no age bar. Second, live the way you want to live because मैं सोचती हूँ भगवान ने हमें जिंदगी एक बार दी है. पिछले जन्म का हमें पता नहीं है, अगले जन्म का भरोसा नहीं है. तो जो जिंदगी मिली है क्यों ना जी भर के जी लो. कोई गाना ना देवानंद का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. तो जी भर के जियो, डोंट बॉदर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. लेकिन पहले जैसे मैंने कहा, जो आप एक्शन करते हो उसके लिए आप यू हैव टू बी हैविंग द ओनर्स ऑन यू. और जैसे आपने पहले ही कहा कि लिव लाइफ क्वीन साइज, तो क्वीन साइज क्यों, किंग साइज जैसे ही रहो ना. और एक 4 लाइनें में सुना दूं जैसे कि व्हाट आई फील अबाउट लाइफ, श्योर श्योर, गो अहेड. मेरी जिंदगी के बारे में. लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की. जिंदगी से जो मिला कबूल कर लिया, किसी चीज की फरमाइश नहीं की.
मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने के अलग है अंदाज मेरे। जब जहां जो मिला अपना लिया, ना मिला उसकी ख्वाहिश नहीं की। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुश हूं कि खुद को गिराकर कुछ उठाया नहीं मैंने। ये मैंने जिंदगी में सोचा, समझा और ऐसे ही किया। बहुत खूब, स्पेशली द लास्ट टू लाइन्स वर वेरी ब्यूटीफुल। आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, व्हाट इज योर मैसेज टू द यंगर जनरेशन, टू द यंगर पेरेंट्स? वेल, मैं एकदम शॉर्ट में कहना चाहूंगी कि जो अभी यंग कपल्स होते हैं वो कोशिश करें कि अपने बच्चों के सामने झगड़ा ना करें। जो भी उनके आपस की बातें हैं वो अलग से सुलझा दे, क्योंकि अगर बच्चों के सामने झगड़ा करके हो तो बच्चों के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। एंड विद देयर इज अ लॉट ऑफ सेपरेशंस, डिवोर्स आजकल के जनरेशन में बहुत हुआ है, तो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है इस बारे में। तो कॉन्शियसली अगर आप कोशिश करो कि अगर फैमिली को आपको एक साथ रखना है तो झगड़े बंद करो और गिव रिस्पेक्ट टू द एल्डरलीज इन योर फैमिली। बच्चे वो देखेंगे कि आप क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो और वो भी वही सीखेंगे, एंड यू विल गेट द सेम रिस्पेक्ट एंड द सेम लव एंड सेम अफेक्शन इन रिटर्न। ट्रू ट्रू, आजकल ईगोज वगैरह भी बहुत, दे वेरी हाई फ्लाइंग ईगोज एंड रेट ऑफ डिवोर्स इज आल्सो बिकॉज एवरीबॉडी इज इक्वली स्टडीड, इक्वली कमा रहे हैं। पहले क्या था, इट वाज मेल शोविनिज्म, वो कमाते थे, घर पे बीमार रहती थी। अब तो दोनों इक्वली कमाते हैं, आजकल की लेडीज ज्यादा कमाती है, तो ये सब चीजें होने लगी है, विच इज अनकॉल्ड फॉर। थैंक यू सो मच भारती जी। आज आप इस पॉडकास्ट में हमारी सेलिब्रिटी बनी एंड इतना ब्यूटीफुल पॉडकास्ट था, इतनी चीज़ें सीखने को मिली, आपसे टिप्स मिले और आपसे दोबारा हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ गुड डे। Thank you for calling me here and having me here for so long. Thank you so much. Looking forward to again being with you. तो ये थी भारती जी की कहानी, उनकी जुबानी। दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।